Good morning, students. In the last class, we have started with a new chapter that was private banking. Okay, तो हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया कि प्राइवेट बैंकिंग मतलब एक्चुअली क्या होता है। ये जो बड़े बड़े वेल्दी पीपल जो रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे उनको बैंकिंग के सारे हेल्प उनको सर्विसेज जो भी है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो योर बैंक्स व्हाट दे डू, दे विल मैनेज द transactions, and even they will see they will give some advice, they will give financial planning, portfolio management, customized financial options. All the details will be provided by financial banking. उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट बैंकिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडियन जो प्राइवेट बैंक है दे आर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज ओल्ड एंड न्यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन बैंक. ओके, फॉरेन बैंक मतलब क्या होता है. सो हियर एज यू मतलब लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ इंडियन एंड फॉरेन. And Indian is divided again into two parts, that is old private banking and new private banking. Okay, old private banking जो थे they were very small and they didn't nationalize at the time of nationalization of the banks. वो जो banks थे वो लोगों ने nationalize नहीं किया. So that was like first part is old and the second is new. Okay, and the second division of private banking system is foreign banks. Okay, now foreign banks are the organization which are under the control of what, under the laws of foreign countries. Okay, engage in the business of banking, recognized as a bank by the banking supervisory or monetary authority of the country of its organization or principal banking operations. Okay, ये जो बैंक्स जो है in their country they are recognized as financial institutions which will deal with the banking transactions. Okay, they will do all the banking operations such as receiving deposit to मतलब जो deposit है वो accept करना, loans grant करना, ये सारे उनके features है. Okay, so India is one of the fastest growing country in the economy. Okay, हमारे इकोनॉमी में जो है मेजर इकोनॉमीज जो है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया क्या है, इज़ अ fastest growing country and world's sixth largest consumer market. India is what, world's sixth largest consumer market. Okay, the country is increasing integration into the global economy, and because of its young demography the country's long term growth perspective is positive. Okay, हमारे कंट्री का जो डेमोग्राफी है इट इज़ वेरी यंग, इट इज़ वेरी न्यू. बिकॉज ऑफ दैट हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स जो है वो पॉजिटिव है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इनफ्लोज इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडिया. नाउ ये जो FDI है विच आर कंसिस्टिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक. ना फॉरेन बैंक हैज़ बीन मेकिंग अ इम्पॉर्टेंट contribution to the Indian economy. Now these foreign banks has also contributed to the growth of the Indian economy. Okay, so here around 46 banks in India are operating. Okay, हमारे कंट्री में it is 46 बैंक as on 30th September 2019. 30th सितंबर से हमारे कंट्री में जो लास्ट 30th सितंबर 2019 तक, उस टाइम तक हमारे कंट्री में अराउंड 46 फॉरेन सेक्टर बैंक्स है. नाउ आई विल टेल यू सम ऑफ द नेम्स ऑफ दोज बैंक्स. दोज आर Citibank entered in India in the year 1902. Standard Chartered Bank, it entered India in 1858. It is like most of the oldest foreign sector bank in India, that is Standard Chartered Bank. Then Dutch Bank, that is entered in the year 1980. Royal Bank of Scotland entered in India in the year 1921. Barclays Bank entered in India in 1990. Bank of America entered in India in the year 1964. So above mentioned foreign banks have been serving Indian client for a couple of decades. Okay, ये जो banks है वो हमारे Indian clients को बहुत साल से serve कर रहे हैं. As normal banks जो हमारे commercial banks रहते हैं वैसे ही ये भी banks
banks है. So leveraging states of art technology, these banks have changed the way of financial transaction were carried out in India. Okay, so here these are some of the foreign banks which are operating in India since decades. Okay, बहुत साल तक ये हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं. दे आर लाइक नॉर्मल बैंक ओनली, बट ये जो बैंक्स हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फॉरेन कंट्री. ओके, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ऑर्गेनाइज अंडर द लॉज ऑफ फॉरेन कंट्रीज. ये इंडियन लॉज के हिसाब से नहीं चलते, दे आर अंडर द लॉज ऑफ फॉरेन कंट्रीज. जिस कंट्री का वो बैंक है उस लॉ के हिसाब से दे विल ऑपरेट. ओके, नाउ रोल ऑफ प्राइवेट बैंकिंग इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्राइवेट बैंक ने क्या क्या रोल प्ले किए हैं. Now, here, as you all know, developing of the economy is a dynamic and a continuous process. It is continuously growing and growing. It will not stop or it will not decrease. And here, banks जो है they are playing very important role. Okay, these banks plays a very important role in the economic progress of the country. Now, they have access and control over the large part of supply of money in circulation, and thus they can influence the nature and character of factors of production as well as volume of production. Okay, now banks are the mainstay of the economic growth. Okay, ये जो banks है they are very important because we are highly dependent on these banks, and these banks helps to extend the mobilization of the resources and investment and on the operational efficiency of various segments of the economy. So here from this we can say that these banks are very very important because what they will do, they will grow the economy, they will mobilize the resources, they play an important role in the circulation of the money. Okay, so here in India, okay, India में most of the banks were founded in Indian entrepreneurs. Okay, in India ये जो banks थे they were founded by Indian entrepreneurs and before pre-dependence era, and provide financial assistance to the traders, agriculturists and upcoming Indian industrialists. Okay, इनके लिए बैंक ने बहुत important role play किया है because they helped the Indian economy to develop. And opening of Indian economy has led to free inflow of the फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब हमारे कंट्री में इकोनॉमी डेवलप हो गई और हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी आउटसाइडर्स के लिए जब फ्री हो गई, तब फॉरेन के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फॉरेन लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने लगे. सो देयर वाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच ऑल्सो इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडियन इकोनॉमी व्हेन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री. ओके, हमारे कंट्री में जब वो इन्वेस्ट करने लगे तब क्या हो गया, उनको लगा कि हमारे कंट्री का भी यहाँ पे बैंक होना चाहिए सो दैट दिस इन्वेस्टमेंट आर अच्छे से मैनेज हो जाए. सो ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सेक्टर. उनका जो पावर है दैट बैंकिंग सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट. सो बैंक एक्ट एट द स्टोर एज वेल एज द पावर हॉनर्ड ऑफ द कंट्रीज वेल्थ. द एक्सेप्ट डेपोजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंड लैंड टू द बिजनेस. ओके, दे यूज द डेपोजिट कलेक्शन फॉर द प्रोडक्शन पर्पज विच हाई इन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. अकॉर्डिंग टू प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज इज बिकमिंग स्पेशल. ओके, ये जो बैंक्स है दे आर बिकमिंग वेरी स्पेशलाइज. फार्मर्स जो है ओके स्पेशलाइज टू सर्व द रूरल एरिया पीपल एंड ऑल्सो द फार्मर्स. सो विल सी व्हाट आर द why this financial assistance to the farmers is a path of progress of the country like us. So private banks has played an important role. So let's see what are the important roles played by the private bank. First one is technology adaptation. Okay, now
फॉरेन बैंक्स है या हमारे कोई भी बैंक है, हमारे कंट्री में दो टाइप्स ऑफ बैंक्स है, दोज आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नाउ दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उन्होंने क्या किया, दे अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, ओके, न्यूली टेक्नोलॉजी वॉज अडॉप्टेड बाय दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक इज एक्सपीरियंसिंग द पॉजिटिव चेंज इन द वर्क एंड परफॉर्मेंस, ओके। सो ये जो बैंक्स है दे हैव ब्रॉट अ न्यू changes in their work and performance. The change is welcomed by the customers of the bank. हम लोग जब कुछ भी अच्छा चेंज आते जैसे कि एटीएम मशीन हो या मोबाइल बैंकिंग हो, दिस फैसिलिटीज will be welcomed by the customer. So quick decisions, paperless transactions, electronic media for transaction, core banking system, and some of the areas which make private sector banks more relevant to the changing era of globalization, okay। जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन मतलब यहाँ पे हमारे कंट्री पूरे ग्लोबली एक्सपोज हो जाती है जब वहाँ पे ट्रेड होता है, when there is transport, there is marketing outside India, so that is known as ग्लोबलाइजेशन। तो ये जब ग्लोबलाइजेशन ईरा जब चलता हमारे कंट्री में अभी चल रहा है तो उसके लिए न्यू न्यू इनोवेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स, फिर उसके बाद क्विक डिसीजंस, देन मीडिया फॉर ट्रांजेक्शन्स, कोर बैंकिंग, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये कहाँ पे, ये किसने इनोवेट किया था, दिस वर इनोवेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक। दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ग्लोबलाइजेशन एरिया। सेकेंड वन इज कस्टमर रिलेशनशिप। ना द न्यू जनरेशन जो ये जो नए नए जो प्राइवेट बैंक्स है हमारे कंट्री में, दे आर with the view to increase their profitability resorted to outsourcing number of banking operations, okay। ये जो बैंक्स है दे आर इन अ वेरी गुड प्रॉफिट, वाई, बिकॉज कस्टमर्स जो है दे हैव नो पर्सनल टच विद द प्राइवेट बैंक, द स्टाफ कैनॉट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द customer should get extra personalized service, thus now missing on the new generation bank। So even there then their competition of new generation private banks are showing good growth of the business, okay। अभी के बैंक्स कैसे हो गए, पहले लोग क्या करते थे, दे वर फ्रिक्वेंटली विजिटिंग बैंक्स। क्यों विजिट करते थे, अगर पैसे विड्रॉ करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करना हो, या पैसे डिपॉजिट करना हो, या चेक देना हो, कुछ भी एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी होते थे उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता था, दे यूज्ड टू विजिट द बैंक। बट नाउ व्हाट हैपेंड हियर, पीपल आर नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, ओके। अभी तो पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, देयर इज नो नीड टू विजिट अ बैंक टू विड्रॉ मनी, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एटीएम, okay। Even you can, with the help of the digitalization technologies, okay, with the app and all, you can transfer your money from one place to another, so it's like a quick process now, so there is less customer relationship। But here banks what they do, they to maintain a good customer relationship, ये private sector banks क्या करते हैं, they provide a good services to their customers so that there is a good relationship between their customers and the bank। Next, competitiveness among private and public bank, okay। Now these banks are presently having a stiff competition as private banks, public banks, and foreign banks, okay। Now these banks are now reaching to doorstep of the customer, and at there is stiff competition, and every organization has to be in a competitive nature and well equipped with the efficient staff members, okay। अभी ये जो बैंक्स है जैसे कि फॉरेन बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, ये बैंक में क्या होगा, देर इज़ कंपटीशन, एंड ये कंपटीशन के लिए ये जो बैंक्स है दे आर गोइंग टू द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स फॉर प्रोवाइडिंग गुड अपॉर्चुनिटी सो दैट दे हैव देयर बैंक, दे रिटेन
सो इनके लिए उनका स्टाफ मेंबर, अ गुड स्टाफ मेंबर रहना इम्पॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम वेरियस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर अप्रोचिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, wide range of products suitable for customers need based products and infrastructure and other facilities are thus available. So the e-banking facilities are provided by the bank. Although there is a phenomenal improvement in these services offered by the bank, there is abnormal growth in transaction cost. Okay, दो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे अच्छे इनोवेशंस ला रहे हैं. अभी तो मतलब ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो देर इज़ लॉट ऑफ सच इनोवेशंस विच हैव अकर्ड इन द बैंकिंग सेक्टर. ओके, नए नए इनोवेशंस आए कि यू कैन पे योर बिल, यू कैन बुक योर गैस, ओके, यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, you can buy groceries with the help of debit card, credit card, okay, you can pay your loan. ओके, कुछ मतलब बहुत सारे इनोवेशंस टेक्नोलॉजी लाए, लेकिन फिर भी इनका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट इनोवेशंस. Now as I told you, these private banks जो है they are engaged specially in innovating the products so that big customers friendly working in the changing banking scenario. Okay, यहाँ पे कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, कस्टमर्स को बहुत साल तक अपने बैंक में रखने के लिए प्राइवेट बैंक्स जो है they are always in a what you call, always they are interested in providing new innovative services to their customers. Okay, so because of this great competition in banking sector, it has become a need of banker for innovating new financial products. Okay, banks are facing competition for many and varied financial institutions. Okay, यहाँ पे banks जो है they are facing many competitions with whom? Financial institutions जो है हमारे कंट्री में उनसे. Okay, and even banks, okay, private public sector banks and foreign banks. So accordingly the financial products suited to the local needs are to be innovated. Okay, जो जो लोकल नीड्स हैं उनके कस्टमर्स को, उनको प्रोवाइड करने के लिए टू ये जो इनोवेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ products and services include opportunities in credit card, customer finance and wealth management as a retail business, and fee based revenue investment banking as a wholesale banking business. Okay, so here the product must suit individual requirements bank, hence must be opted at product innovation. ये जो product innovation जो भी कर रहे हैं it should suit the individual requirement, मतलब जो customers के requirement है उसको सूट करना चाहिए. एंड इवन बैंक के प्रोडक्ट को भी बैंक को भी वो सूट करना चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी प्रोडक्ट लेके आओ एंड इट डजंट सूट द इंडिविजुअल एज वेल एज बैंक. इट शुड सूट बोथ, दैट इज बैंक एज वेल एज इंडिविजुअल. Then next is utilization of skillful manpower. Okay, as compared to public sector banks where staff recruitment process is rigid and structural framework is आपको अभी पता है पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब SBI जो दोज आर विच आर हैविंग 50% एंड मोर स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, ये जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, ओके, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ वेरी रिजिड. ओके, यू कैन नॉट जस्ट गो थ्रू द इंटरव्यूज और एग्जाम, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम एंड यू हैव टू एंटर दिस इंटरव्यू प्रोसेस. और बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, प्रोबेशन पीरियड, एंड इफ यू क्लियर everything then you are in the job, otherwise you are not selected. सो यर यहाँ पे ये जो है उनका फ्रेमवर्क डिफरेंट रहता है. ओके, यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने का जो फ्रेमवर्क रहता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, वेर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हमारे कंट्री में है, दे विल रिक्रूट
a technically sound personnel. Okay, here banks have an advantage to recruit skilled and technically sound personnel. So private sector banks can get efficient and good quality human resources for them. Okay, जब आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है, जब आप लोग SBI में जाते हो और HDFC में जाते हो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्टाफ हु इज़ वर्किंग देयर. SBI के जो स्टाफ है, व्हाट दे विल डू, दे विल टेल यू कल आओ, उसके परसों आओ, but they will not do the work quickly, whereas if you go in HDFC they will do it in a day. Okay, अगर वो बहुत बड़ा काम है तो भी वो कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए they will quickly respond to the customers, whereas if you go to the public sector bank they will never entertain you when they feel उनको जब लगता है कि हम लोगों ने कुछ करना चाहिए तब वो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट डू सो. यर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं, दे विल सी स्किलफुल, मतलब जो स्किल्स है वो लोगों को और टेक्निकली साउंड पर्सनल को अपॉइंट करेंगे. सो दैट इज़ द एडवांटेज फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. So they will have good quality human resources. Okay, however they have to face problems of sustaining the quality human resources in the bank for a longer time. Okay, so that is the disadvantage of them. Then retaining of customers. Okay, here customer relationship management is a tool to acquire new customers. Okay, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट बैंक के पास रहते हैं, एंड दैट इज़ द मेन टूल टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स एंड टू रिटेन ओल्ड कस्टमर्स and to provide quality services to their new as well as existing customers. Okay, so bank are to gain customers loyalty as it becomes a positive strength of the bank. Okay, का बैंक्स जो है उनके कस्टमर्स की लॉयल्टी जो है इट बिकम्स अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक. ओके, अगर लॉयल कस्टमर्स हैं देन बैंक विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ मार्केट बाय अ मार्केट सर्वे एंड स्टडी ऑफ कस्टमर बिहेवियर विल हेल्प द बैंक टू असेस द नीड्स ऑफ द कस्टमर. दिस विल फर्दर हेल्प इन रिटेनिंग द कस्टमर्स. It will further grow the banking business and ultimately will be helpful for growing of the economy. Okay, so retaining customers also plays an important role of the bank. Next, I'm sorry the picture is not so clear. Okay, so business benefit. So here ये जो बैंक है जब वो अपने जो प्राइवेट बैंकिंग मतलब वो दे विल गिव सर्विसेज टू द वेल्दी पीपल. ओके, हियर बिजनेस ओनर्स जो है दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक बिकॉज दे विल अपॉइंट अ पर्सनल प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट रिलेशनशिप विद सम ऑफ देयर बैंक्स ऑफ देयर बिजनेस अकाउंट. जहाँ पे उनका बिजनेस अकाउंट है they will appoint some personnel. Okay, banking private banking sector will provide them personnel who will manage their business. So this relationship may help to secure commercial lendings opportunities or discount or benefit on their business of banking side. Okay, then persistence profitability. Now private banking sector have consistently generated profit even in the hands of economic times. Okay, जब हमारे कंट्री में हार्ड इकोनॉमिक टाइम था तब भी प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है दे हैव गेन्ड मोर प्रॉफिट. द स्पीडी कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट बैंक्स टू एडजस्ट देयर ऑपरेशन मॉडल टू सर्टन मार्केट चेंजेस इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी. ये जो बैंक्स है दे हैव मैनी टूल्स टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन. ओके, मार्केट की जैसी सिचुएशन है उस तरह से एडजस्ट करने का उनके पास बहुत सारे मार्केट टूल्स रहते हैं. दे डू द रिसर्च एंड एवरीथिंग एंड देन दे प्रोसीड. सो उनके लिए उनका कोई ऐसे चांसेस नहीं रहता है कि दे विल गो इन लॉस. देयर इज ऑलवेज प्रॉफिटेबिलिटी विद द इंक्रीज नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. द प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री इज एक्सपांडिंग टू टेक इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन opportunities in the emerging market. Okay, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री. ओके,
ये अब जब हमारे कंट्री में इंडिया लिबरलाइजेशन हुआ, देर वॉज अ मेजर चेंजेस. ओके, द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द लिबरलाइजेशन एज टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक ऑफ 51% इन पब्लिक बैंक सेक्टर. आरबीआई परमिटेड न्यू बैंक. ओके, हमारे कंट्री में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट का जो स्टेक है, ओके, दैट इज़ 51% ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने परमिशन दे दिया कि दे कैन हैव अ प्राइवेट सेक्टर बैंक एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी. ओके, ये जो नरसिम्हा कमेटी है उनके अकॉर्डिंग दे हैव गिवन अ परमिशन टू स्टार्ट अ public sector private sector banks. So foreign banks also were permitted in the new banking sector, new banking industry. Okay, so Indian banking system consists of 18 public sector bank, 22 private sector bank and 46 foreign banks, 53 regional rural banks, 1542 urban cooperative banks and 94,384 new rural cooperative banks as on September 2019. ओके, देखो कितने सारे बैंक्स हैं हमारे कंट्री में. देर आर 18 पब्लिक सेक्टर बैंक. दीज आर मेन. ओके, जो ब्रांच है वो उनके बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं. ऐसा नहीं कि एसबीआई, आप लोग बोलेंगे मैम एसबीआई के इतने हैं तो ऐसे कैसे 18 पब्लिक सेक्टर बैंक. इट इज़ लाइक मेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे है, उसके ब्रांचेस बहुत सारे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर बैंक. ओके, सो योर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन outstrip their public sector peers when they came into growing of the loan book. Okay, so private sector bank have been concerned to entire share of increment of loan growth and may increase their shares from 38 to 40% by 2019. The market share of private sector banks, market shares जो है private sector banks in banking sector advance is expected to increase from 38% to 40% by 2019 and from 90.9% as on 31st March 2014. See, it was in 2014 it was only 19.9%, but now by 2019 they expect that it will increase to 38 to 40%. Okay, the ICRA report assumes an increment market share about 80% of the private sector जो banks है they have a credit growth of how much 7 to 9% from the time of entire banking sector during 2019-20. Okay, now they have given a report, okay, performance of private sector banks. So let's analyze the report of that. ये देखो रिपोर्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ओके, ये जो परफॉर्मेंस है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. ओके, नाउ द अमाउंट इज इन बिलियंस एंड दे हैव गिवन द आइटम्स. ओके, एंड ईयर दे हैव गिवन 4 years, दैट इज 2016, 17, 18, 19. ओके, कैपिटल कितना था 106 था इन द ईयर 2016. सी हाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 110 इन 2017. 2016 से 18 हम लोग देख सकते हैं देर इज़ नो ट्रेमेंडस इंक्रीज, उतना इंक्रीज नहीं हुआ. लेकिन 2018 से 19 सी हाउ मच इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 116 इन 2018 इट हैज़ इंक्रीज टू 2014. ओके, कितना देखो, सॉरी नॉट 2000, इट इज़ 214. नेक्स्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. पहले 2016 में कितना था रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट वाज 3185. देन इन 2017 इट वेंट टू 3709. Then in 2018 it increased to 4,320 and in the year 2019 it increased to 5,277. ओके, देखो कितना इंक्रीज हो गया. डेपोजिट्स देखो, इट वाज 21,477, देन इट इंक्रीज टू 95,648, देन इट इंक्रीज टू 30,137 and that was like no such increase of deposit, सिर्फ 37,700. ओके, इतना ही बिलियंस. ओके, दे आर इन बिलियंस, इतना ही इंक्रीज हुआ है.
लोन्स एंड एडवांसेस देखो, इन्वेस्टमेंट देखो 7,985 इन द ईयर 2016, 2017 में 8,551, 2018 में 10,118, 2019 में 12,191. ओके, लोन्स एंड एडवांसेस देखो, इट वाज 19,339 इन द ईयर 2016, 22,196 in the year 2017, 2018 में 26,628 and in 2019 it is 33,273. फिक्स असेट्स देखो 227 इन द ईयर 2016, 2019 में देखो कितना इंक्रीज हुआ, इट इज़ 362, not 2000, it is 227. So this report was provided by whom? RBI, report of trends and progress of bankings in India. So above table we can see there is a tremendous increase in and continuous and steady growth of capital deposit, investment and loans and advances. देखो कितना increase हो गया. The capital of private sector banks was 106 billions in 2016, which increased to 214 in the year 2019. So here you can see deposit collection by the private banks is very slow. मैंने बोला ना deposit में इतना कुछ increase नहीं हुआ. So that it shows a significant growth as well as investment also increase very substantially. इन्वेस्टमेंट देखो कितना था, 7,000 था, और अभी 2019 में कितना है, 12,191. सो देर इज इंक्रीज. तो ये चार्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कितना इम्प्रूवमेंट किया, हाउ मच दे हैव इंक्रीज्ड इन 4 years. जैसे कि उनका कैपिटल बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गया, डिपॉजिट्स भी इंक्रीज हो गए, उतना कुछ इंक्रीज नहीं हुआ. इट इज़ लाइक ओनली, मतलब बहुत ट्रमेंडस इंक्रीज जैसे कुछ नहीं हुआ. फिक्स एसेट में बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गया. देन लोन्स एंड एडवांसेस ऑल्सो इंक्रीज. देन इन्वेस्टमेंट नॉट दैट मच. ओके, so from this we can say they have increased a lot. In the next class we will see challenges before private sector banks in India. Okay, what are the challenges of these private sector banks in India?